We learn in yesterday's lecture the position of the minor in the partnership firm, right? Section 30 describes the position of a minor in the partnership firm, wherein a minor, right, who is incompetent to enter into contract as per section 11 of the Indian Contract 1872 cannot be, right, a forming partner in the partnership, right? However, he can be admitted to the benefits of the partnership, right, with the consent of all the partners. Then the right, when minor is admitted to the benefits of the partnership, right, he has three rights. Right one, he will share the property of the partnership and he will share the profits of the partnership as agreed between the partners when he was admitted, right? ये right carry forward होगा when he becomes major and decides to what, become a full-fledged partner. कौन सा right बोला? Share in the profits and share in the property of the partnership as agreed between the partners when he was admitted into partnership. This right will be carried forward, right, when minor on attaining the majority decides to become the partner. Then next, second right था to access, to inspect and, right, to copy, right, the books of accounts बोला मैंने, not other books, मैंने account books बोला, right? He has, मैंने क्या बोला उसको? A minor has a right to access, to inspect and to copy the books of accounts of the firm and not other books. Other books include some secret books, some confidential information, right, other than books of accounts. And third, a minor cannot sue other partners for his share in the property or his share in the profit. He can do so only if he decides to disconnect from the firm. So three rights, right, and two liabilities. One, minor, right, is liable to the debts of the company. Sorry, minor is liable to debts of the partners, right, right, or partnership firm, right, to the extent of his share in the profit or his share in the property of the firm. He is not personally liable. At the same time, his personal property or estate is not liable, right, for the debts of the partnership firm. And second, मैंने बोला, right, when firm gets dissolved on the insolvency of the partnership firm firm कब insolvent होगी? When partnership assets are not sufficient to pay off partnership liabilities, तब firm insolvent हो जाएगी. And फिर कोर्ट क्या करेगी? Right, it will attach the personal estates of the partners to pay off to the creditors, right? ऐसे केसेस में, right, will firm, like, will court adjudicate minor as an insolvent? No, minor can never be adjudicated as an insolvent, right? However, his share in the property of the firm and his share in the profits of the firm will waste with or will remain in custody of, right, official assignee or official receiver, and that share later on will be used to pay off to the creditors. So these were the rights when minor, right, was right, minor was admitted as a partner, and these were his rights during his minority. And then हमने देखा कि when minor attains the majority, right, then within the 6 months from a date of attaining the majority or the date, right, when he first come to know that he was admitted to the benefits of the partnership. मैंने दो dates बोले. First, a, the date of attaining the majority से 6 months लेने, or, right, the date when he first came to know that he was admitted to the partnerships, right, for his benefits, उस दिन से 6 months. So हमें दो periods मिलेंगे. Whichever date comes later, right, वो date हम, right, उसको notice के लिए रखेंगे. If minor had knowledge of his admission to the benefits of the partnership before attaining the majority, so in that case, right,
For me, period is from the date of attaining the majority. And if minor comes to know that he was admitted to the benefits of the partnership after attaining the majority, right? In that case, my period will start from the date when he came to know about such admission. Within that period, he has to decide whether to become a partner or not to become a partner. If he decides to become a partner, he may serve notice, he may give public notice of, right, his intention to become a partner, or he may, right, even ignore, he may not give public notice, still try to understand, he will be admitted as a partner. Because if a minor, right, fails to give public notice within the said 6 months, he automatically क्या बन जाता है, partner बन जाता है. अगर minor on attaining the majority decides to become a partner, he can give notice or he may not give notice, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप क्या हो जाएगा, पार्टनर हो जाएगा. However, if minor on attaining the majority decides not to, right, continue as a partner, not to become as a full-fledged partner, in that case he must and must give notice of his unwillingness to continue as a partner in the firm, right? And that is to be given within that said 6 months. A या B के हिसाब से जो आता है उसके हिसाब से, समझ में आ रहा है? उसमें हमने देखा, right, what are the rights and liabilities if minor decides to become a partner and if minor does not, right, want to be a partner. If minor decides to become a partner, then try to understand what is his share in the profit and what is his share in the property. His share in the profit and his share in the property of the partnership will be same as, right, when he was a minor. जब वो माइनर उसको एडमिट किया था तब आपने बाकी पार्टनर्स ने जो डिसाइड किया था ना, वही शेयर इन द प्रॉफिट एंड वही शेयर इन द प्रॉपर्टी कंटिन्यू होगा इफ not altered. Then that is one of the right. Second right, he will be treated as full-fledged partner and his rights and liabilities, जो हम next chapter में सीखने वाले, rights of the partner and liabilities of the partners, try to understand, will be same as a normal partner, full-fledged partner. समझ में आ रहा है? And obviously right to access books वगैरह तो हो जाएंगे. एंड जब आप जब माइनर से मेजर हो जाते हो, यू कैन ऑल्सो एक्सेस द अदर बुक्स. मैंने क्या बोला था, व्हेन यू आर ए माइनर, राइट, आप क्या नहीं एक्सेस कर सकते थे, अदर बुक्स एक्सेस नहीं कर सकते थे. हाउएवर वंस यू बिकम ए मेजर, राइट, यू कैन इवन, एंड आप पार्टनर होना डिसाइड करते हो तो अपने आप राइट, यू कैन हैव एक्सेस टू दोस, राइट, बुक्स एज वेल. देन सो राइट, सो एक सेकंड, ठीक है. So एक मैंने बोला rights and liabilities will be same as full-fledged partner. Then right, दूसरा मैंने बोला कि उसका share in the profit and share in the property will be same as, right, when he was admitted into partnership. And right, मैंने बोला कि he will be personally liable to the third parties for the debts of the firm, not from the date, right, he decided to become partner, but from the date he was admitted to the benefits of the partnership. Means his unlimited liability status will be retrospective, not prospective. आज से नहीं, retrospective होगा. There is a difference. Unlimited liability कब आती है, try to understand. Unlimited liability, कल एक स्टूडेंट ने और मैंने वो ग्रुप पे भी, राइट, वो आंसर मैंने शेयर किया था, राइट. द क्वेश्चन वाज कि सर जब माइनर को एडमिट किया था, राइट, माइनॉरिटी में, राइट, उसके माइनॉरिटी में, तो उसके बाद फर्म वाज कंटिन्यूअसली सफरिंग द लॉसेस में थी, तो ऑब्वियसली हम उसको लॉसेस देंगे नहीं. एंड जब वो माइनर, जब वो मेजर हो जाएगा एंड डिसाइड्स टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर, डज इट मीन कि पहले जो उसको लॉसेस नहीं मिले थे, बिकॉज माइनर को हम लॉसेस नहीं दे सकते, तो उसको वो लॉसेस मिलेंगे क्या, दैट वाज अ क्वेश्चन. देखो, शेयरिंग ऑफ द लॉसेस इज नॉट अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या, जब फर्म थर्ड पार्टीज को पेमेंट नहीं कर सकती. एग्जांपल, बैंक, लाइक फर्म हैज टेकन लोन and firm cannot repay it. Firm has purchased goods on credit and now firm cannot pay it. Try to understand. हमने प्रॉपर्टीज परचेस किए क्रेडिट पे, हम पे नहीं कर पा रहे. ऐसे केसेस में ट्राई टू अंडरस्टैंड,
फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, एंड उस लाइबिलिटीज की मैं बात कर रहा हूं, अगर उस लाइबिलिटी फर्म इंसॉल्वेंट होने के बाद, मैं लॉस अलग है, लॉस इज इनकम माइनस एक्सपेंस. If your income is more than expense, firm is into profit. Otherwise, it is into loss. And वो लॉस शेयर करना है नहीं करना है ये अलग है, एंड ये तो होता रहेगा. However, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब आती है, राइट जब फर्म थर्ड पार्टीज को पे नहीं कर पाएगी, तब राइट फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, एंड फिर पर्सनल एसेट्स अटैच किया जाएगा तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी. अगर पर्सनल एसेट्स अटैच नहीं किए जाएंगे तो वो लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी. जैसे कंपनी के केस में, इफ कंपनी बिकम्स लाइक insolvent, मतलब कंपनी कैन नॉट पे इट्स लायबिलिटीज with its assets, in that case company will become what, right, insolvent, and in that case company's assets will be realized. जितना पे होगा उतना पे होगा. Will the shareholders assets will be attached? No, because in that case the company and shareholders are separate entities, they are different. But partnership firm के केस में partnership and partners are one and the same, so partners की liability हो जाती है unlimited. तो जो क्वेश्चन था कि सर जो प्रीवियस लॉसेस माइनर ने शेयर नहीं किए, बिकॉज राइट माइनर कैन नॉट शेयर द लॉसेस, जब वो मेजर हो जाएगा एंड पार्टनर होने का डिसाइड करेगा तो हम उसको लॉसेस देंगे क्या? नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयरिंग ऑफ द प्रीवियस लॉसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेट्स ऑफ द कंपनी, डेट्स ऑफ द फर्म के लिए वो लायबल रहेगा. अगर कल जाके पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट हो जाती है, समझ में आ रहा है, तब जो लाइबिलिटीज हमें पे करने होंगे, तो माइनर बोलेगा देखो मैंने खुद कंसेंट देने के पहले, जब मैं माइनर था, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बोल रहा हूँ. सपोज एक तारीख पे उसको हमने एक तारीख को हमने उसको पार्टनर बोल के एडमिट किया था, बाद में मेजोरिटी के बाद उसने कंसेंट दी उसको पार्टनर होना है, फिर फर्म चली और बाद में इंसॉल्वेंट हो गई, तो वो कौन से लायबिलिटीज के लिए लायबल रहेगा? वो जब उसने पार्टनर होने का डिसाइड किया उसके बाद वाले लायबिलिटीज, या जब उसको एडमिट किया था उसके बाद वाले लायबिलिटीज, या उसको एडमिट करने के पहले वाले लायबिलिटीज? ये भी पता होना चाहिए. ए पार्टनर इज लायबल राइट टूवर्ड्स लायबिलिटीज. कौन से लायबिलिटीज के लिए? राइट ए पार्टनर इज लायबल ओनली टूवर्ड्स दोज लायबिलिटीज व्हिच अराइज आफ्टर हिज एडमिशन. कोई भी पार्टनर, दिस इज ए like standard rule, try to understand. हम second इसमें सीखेंगे. What is the liability of a partner? Partner is liable for all those liabilities after his admission and not before his admission. So जब हम किसी को एडमिट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे भाई ये लाइबिलिटीज तू आने के पहले के, तो इसके लिए हम लायबल है, और तू आने के बाद जो लाइबिलिटीज अराइज होंगे उसके में तू भी हमारे साथ लायबल रहेगा. So generally, if nothing is mentioned, when you admit a person into partnership, उसके बाद के जो लाइबिलिटीज होते हैं ना उसके लिए वो हिस्सेदार रहता है, उसके पहले के लाइबिलिटी के लिए जो पहले पार्टनर थे वो लायबल रहेंगे. समझ में आ रहा है? सपोज ए एंड बी वर द पार्टनर्स, आपने सी को ले लिया, तो सी के आने के पहले के लाइबिलिटीज के लिए ए एंड बी रहेंगे, एंड सी आने के बाद के लाइबिलिटीज के लिए ए बी सी रहेंगे. अब माइनर के केस में क्या हो रहा है, माइनर को हमने एडमिट किया और बाद में उसने राइट माइनर होना डिसाइड किया आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी, राइट. तो अब वो कौन से लायबिलिटीज के लिए लायबल रहेगा? वो माइनर, उसको पार्टनर एडमिट करने के पहले के लायबिलिटी का तो कोई सवाल नहीं है, उसके वो तब था ही नहीं, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं. उसको एडमिट किया, उसके बाद वाले सब लायबिलिटीज को वो क्या रहेगा, अगर फर्म डिसॉल्व होते हैं, अगर वो लायबिलिटीज पे नहीं होते तो उस राइट उसके लिए वो जिम्मेदार रहेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? सो कौन से लायबिलिटीज के लिए लायबल रहेगा? All those liabilities which arise after right he was admitted to the benefits and not he decided to become partner. वो तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज उस दिन जब उसने डिसाइड किया कि मुझे पार्टनर होना है 6 मंथ्स के भीतर, राइट उसके बाद के लायबिलिटीज के लिए तो है ही है, बाय डिफॉल्ट है, बिकॉज एवरी पार्टनर कोई भी हो एक बार डिसाइड किया मुझे पार्टनर होना है, वो लायबल रहेगा ही रहेगा उस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन. हाउएवर मैंने कल लिखा था देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल. माइनर के केस में वो जिस दिन उसने डिसाइड किया है मुझे पार्टनर होना है, उसके पहले के भी लायबिलिटीज के लिए वो क्या होता है, राइट लायबल होता है. कहां तक हम पीछे जाएंगे? द डेट ऑन विच ही राइट वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर. उसके पहले के लिए वो उसको हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, राइट उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं वही बोल रहा था. एंड व्हाट आर इट्स राइट्स? जब वो बोलता है मुझे राइट
पार्टनर नहीं होना है तो व्हाट आर हिज राइट्स एंड व्हाट आर हिज लायबिलिटीज। अगर वो बोलता है कि मुझे पार्टनर नहीं होना है तो ही हैज टू गिव नोटिस ऑब्वियसली। अब the date on which he gives notice, from that date he will not be treated as a partner, but till that date we will consider him as like a minor only। मतलब the rights of the minor and the liabilities of the minor रहेंगे, भले उस दिन वो एज वाइज मेजर क्यों ना हो, हमारे ट्रीटमेंट कैसे रहेगी एज ए माइनर। समझ में आ रहा है? तो ये पता होना चाहिए, राइट। एंड इसका मतलब उसके राइट्स रहेंगे, 1 his share in the profit and property was as same as decided, right, when he was admitted into partnership. He had access to the books of accounts and not other books. And third, he can not sue other partners for his share in the profit and share in the property. However, now as he is disconnecting himself from the partnership firm, he can file a case against the partners। अगर आप कंटिन्यू करते हो पार्टनरशिप को 6 months के भीतर, within that period you cannot file case against other partners for your share in the profit and share in the property, but आप डिसकंटिन्यू करते हो तो you can file, then only you have the right। अब यहाँ पे पार्टनर बोल रहा है I don't want to be a your right continuing partner, मुझे नहीं रहना है, राइट। माइनर मेजर होने के बाद बोलता है मुझे पार्टनर नहीं रहना है, he can file case। फिर राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कल मैंने 1-2 केसेस बोले थे, राइट। जब फिर बच्चों ने जब डाउट पूछे तो मैंने 1-2 केसेस शेयर किया आप लोगों के साथ। उसमें से एक अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट विल बी ही शेयरिंग द प्रीवियस लॉसेस। नो, ही विल नॉट बी शेयरिंग द प्रीवियस लॉसेस, बट उस पीरियड के लायबिलिटीज के लिए वो क्या रहेगा, राइट, जिम्मेदार रहेगा, राइट। नेक्स्ट, दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट नहीं होती तो उसकी वैसे भी उसकी कोई टेंशन नहीं, ही विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स ओनली। देन राइट, आगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरा एक मैंने डाला था कि उस केस में क्या हुआ था, मैंने बोला था देयर वर 2 मेजर पार्टनर्स, राइट, एंड 1 माइनर पार्टनर। एंड क्या हुआ कि बिफोर माइनर बिकम मेजर, और ऐसे समझो कि माइनर मेजर बन गया एंड 6 months के पीरियड के भीतर ही फर्म क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। एंड फिर वो केस चल रही है इंसॉल्वेंसी के लिए, जो मेजर पार्टनर्स है उन्होंने क्या किया, राइट, अप्लाई किया होगा इंसॉल्वेंसी के लिए, एंड उस पीरियड में 6 months हो भी गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस पीरियड में 6 months हो भी गए, वो जो केस चल रही है। अब क्या हो रहा है, द अदर पार्टनर से इवन द माइनर जो अब मेजर हो चुका है also held him liable for the partnership liabilities। वो बोल रहे हम दोनों नहीं, ये भी इसको लेना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन, माइनर को पार्टनर बनना है विद इन 6 months, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कोई भी पर्सन कैन बिकम ए पार्टनर ऑफ ए फर्म ओनली इफ इट इज इन एग्जिस्टेंस। अगर वो फर्म है तो ही पार्टनर हो सकते हो ना आप। इफ यू वांट टू एडमिट ए पार्टनर तो पहले फर्म तो होनी चाहिए, तो हम उसको एडमिट करेंगे, या वो पार्टनर हो सकता है। वी आर नॉट फॉर्मिंग द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ऑलरेडी है। आज खाली उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको 6 months के भीतर उसको हाँ या ना बोलना है, एंड दैट पीरियड हैज नॉट इलैप्स्ड, राइट। उसके भीतर ही फर्म इंसॉल्वेंट हो गई। जैसे फर्म इंसॉल्वेंट होती है, फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट, फर्म बंद हो गई। जैसे फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, फर्म नहीं रही। तो अगर फर्म नहीं है तो आप उस वो कैसे बोलेगा कि मुझे उसमें पार्टनर होना है या नहीं होना है। ही फेल टू गिव नोटिस, केस चल रही है, ही फेल टू गिव नोटिस, और ये बोल रहे एज ही फेल टू गिव नोटिस 6 months हो भी गए एंड उसको पता भी था ही इज नाउ पार्टनर। तो कोर्ट ने बोला जब वो 6 months का पीरियड चल रहा था, या जब उसको लास्ट डेट थी उसको नोटिस देने के लिए, राइट, जो लास्ट डेट थी उस दिन तो फर्म होनी चाहिए ना। अगर फर्म नहीं तो कैसे नोटिस देगा कि मुझे पार्टनर होना है या नहीं होना है। जो फर्म नहीं है उसके लिए आप कैसे नोटिस दोगे। तो कोर्ट ने बोला सेक्शन 30 इज एप्लीकेबल, राइट, एज्यूमिंग दैट फर्म इज इन टू एग्जिस्ट। नहीं, कहाँ पे लिखा नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉ में भी नहीं लिखा है, बट राइट द कोर्ट केम विद द कंक्लूजन, या कोर्ट बोलता है कि लॉ का इंटरप्रिटेशन ऐसे है कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब फर्म एग्जिस्टेंस है। तो कल के एग्जांपल में जो मैंने केस स्टडी दी थी उसमें क्या हो रहा था कि 6 months खत्म होने के पहले ही फर्म डिसॉल्व हो चुकी थी, तो फर्म थी नहीं। सो जब वो नोटिस देने जाएगा, सपोज उसको नोटिस भी देनी होगी, तो किसके लिए नोटिस देगा। अगर फर्म नहीं है तो क्या नोटिस देगा। चलो भूल गया तो भूल गया, अगर देना भी होता तो कैसे नोटिस देता। सो ही वॉज नॉट ए पार्टनर। 6 months हो गए, नोटिस नहीं दे, इसलिए वो पार्टनर नहीं हो रहा है। यू ओनली टू हैव टू बेयर ऑल द लायबिलिटीज, यू कैन नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल दिस, राइट,
माइनर हु हैज नाउ बिकम मेजर। सो ये एक ओवरऑल केस थी, तो मैंने वो जानबूझ के दिया, ये कहाँ पे बुक में नहीं है, ये केस स्टडी थी जो मैं गो थ्रू कर रहा था, तब मैंने उसमें से एक्सट्रैक्ट आपको निकाल के एक समरी आपको दे दी, तो अंडरस्टैंड कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है। ये लिखा नहीं है बट ये समझ में आना चाहिए। जिस दिन मुझे नोटिस देनी है आई वांट टू बी ए पार्टनर और आई डोंट वांट टू बी पार्टनर, ऑब्वियसली दैट फर्म हैज टू बी इन एग्जिस्टेंस। तो अगर उसके पहले इंसॉल्वेंट हो चुकी है फर्म, तो उस दिन जिस दिन नोटिस देनी फर्म नहीं, तो आप कहां से पार्टनर होगे, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट मैं जस्ट एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट, जिससे आप समझ सकते हो, लॉ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो राइट, सो होपफुली वो केस समझ में आई होगी आपको। अगर नहीं है तो यू कैन स्टिल आस्क मी, आई विल टेल यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस दिन मुझे पार्टनर होना है किसी फर्म में, आई वॉन्ट टू गेट एडमिट इन टू पार्टनर इन ए फर्म, आप कब हो सकते हो? जब उस दिन एग्जिस्टेंस में रहेगी तब ना। अगर उस दिन वो फर्म नहीं तो आप कैसे उसके पार्टनर हो सकते हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके पहले अगर फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, राइट, तो पार्टनर, ये माइनर को नोटिस देने की वैसे भी जरूरत नहीं थी बिकॉज फर्म थी नहीं, इसलिए भले ही 6 मंथ्स हो चुके हैं, उसने नोटिस नहीं दिए, फिर भी वो माइनर पार्टनर नहीं बनेगा बाय डिफॉल्ट। हम क्या बोलते हैं? माइनर फेल्स टू गिव नोटिस within 6 months, he automatically becomes partner. Are he will become partner if there is a firm. If there is no firm, how he will become partner? यहाँ पे फर्म ही नहीं थी बिकॉज वो क्या हो चुकी थी? डिसॉल्व हो चुकी थी, राइट? सो सेक्शन 30 और एनी सेक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एज्यूम्स दैट देयर इज अ फर्म। हम एक्ट तभी सीख रहे हैं जब फर्म है, अगर फर्म ही नहीं तो कहां से एक्ट रहेगा? समझ में आ रहा है? जब हम कोई प्रोविजन अप्लाई कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मान रहे हैं कि यस, जब मैं बोल रहा हूँ नथिंग इज डिसाइडेड, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, अरे आप मुझे बोलो अगर फर्म होगी तो ही शेयर करेंगे ना। सो एवरी सेक्शन एज्यूम्स व्हाट, देयर इज अ फर्म। समझ में आ रहा है? एंड हमने एक बिजनेस के वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस देखा था कि बिजनेस हैज टू बी इन एग्जिस्टेंस, राइट? पार्टनरशिप टू डू फ्यूचर बिजनेस इज नॉट ए पार्टनरशिप। लाइक मैंने एग्जांपल दिया था, आप 3 फ्रेंड और बोलते हो सी होने के बाद हम पार्टनरशिप करें, राइट? सी होने के बाद हम बिजनेस करेंगे, बट आज से हम पार्टनर है, राइट? सच एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड बिकॉज बिजनेस इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो ये समझ लेना, ठीक है? सो ये सब था माइनर पार्टनर, राइट? सेक्शन 30, सेक्शन 28 हैव ऑब्वियसली मोर वेटेज, राइट? सो ये समझ में आना चाहिए। और मैंने कल एक बोलते बोलते वहां पे लिख के दिया था कि ए पर्सन once become partner in a firm is liable from the date he is a partner and not the retrospective. There is one exception, minor becomes liable retrospectively, right? Only one exception. हाँ, अगर आप किसी को पार्टनर बोल के लेते हो, एक्चुअली सेकंड चैप्टर का डिस्कशन है बट अभी बात निकली तो मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं किसी पार्टनर में पार्टनर होता हूँ एंड अगर वो पार्टनर्स बोलते कि तू आज से लायबल नहीं होगा, तू लास्ट 3 ईयर से लायबल होगा, अगर तुझे ये मंजूर है तो ही पार्टनर हो, अदरवाइज नहीं। एंड इफ आई एग्री टू देम, इन दैट केस ओनली आई विल बी लायबल विथ रिट्रोस्पेक्टिवली, अदरवाइज नहीं। इसलिए बोला जाता है इफ नथिंग इज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, ए न्यूली एडमिटेड पार्टनर इज लायबल फ्रॉम द डेट ही इज एडमिटेड। बट अगर ये मेरे एग्जांपल में क्या हुआ था कि मुझे उन्होंने बोला कि तू 3 इयर्स के पहले से क्या रहेगा? लायबल रहेगा, अगर तुझे होना है तो, नहीं तो नहीं। आई वॉन्ट टू बी देयर पार्टनर, मैं बोलता हूँ हाँ, तो इन दैट केस आई विल बी हेड लायबल रिट्रोस्पेक्टिवली। एंड माइनर के केस में बाय डिफॉल्ट होता है बिकॉज इट इज गिवन इन द एक्ट, राइट? ये डिड के थ्रू नहीं आप उसको चेंज कर सकते बिकॉज डिड प्रोविजंस कैन नॉट बी इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजन। ये हमने बहुत पहले ही सीखा था, ठीक है? मतलब हम डीड में ऐसे नहीं कर सकते कि माइनर इज लायबल ओनली फ्रॉम टुडे एंड नॉट retrospectively. That is not possible because it is against the provision of section 30. समझ में आ रहा है? Such provisions which are in contradiction or contravention to the partnership act are not, right, correct provisions in the deed. That is not allowed. ठीक है? So ये सब था, right, पार्टनरशिप के रिलेटेड। नाउ, राइट, वी विल एंटर इनटू, राइट, एक सिंपल पार्ट है डिस्टिंग्विश। हमें इस चैप्टर में से हमारा डिस्टिंग्विश बाकी है, तो आई विल स्टार्ट विद द कंपनी एंड पार्टनरशिप। आई नो यू आर डन इट इन योर 12th, बट फिर थोड़ा मुझे उसके और डिटेल में जाना है, राइट?
try to understand if you remember, and again you will learn all these things in detail. मैं बोल रहा हूँ in detail in your right from tomorrow. Sir is starting with Companies Act. मैंने आपको बोला था कि सर Companies Act लिखते हैं because Companies Act इंटर में भी है, Companies Act फाइनल में भी है, तो फाइनल एंड इंटर को सर लॉ लेते हैं, एंड फाउंडेशन में सम ऑफ द प्रोविजन, सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ द एक्ट आर इन फाउंडेशन एज वेल. तो सर ही क्या लेते हैं, कंपनीज एक्ट लेते हैं. तो कल से सर वो स्टार्ट कर रहे हैं. सो उसमें तो आप डिटेल में सीखोगे, राइट. मैं थोड़ा एक अभी मुझे जितना रिलेवेंट है मैं उतने एक राइट आपको आइडिया देता हूँ, ध्यान देना, ठीक है. सो ध्यान देना इज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब सर आपको बोलेंगे तो थोड़ी फार चीजें आपको भी पता होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि आप पूरे ब्लैंक हो, बिकॉज इट इज इन पार्टनरशिप के चैप्टर में जितना हमारा रिलेटेड है मैं वो आपको समझा रहा हूँ. इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ठीक है. सो पहले तो समझ लेना, हमने समझा कि देयर इज कोई भी बिजनेस है, जनरली इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस. आपको ये पता होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस. Like partnership is an association of person, company is an association of person, club is an association of person. Are you right? So association of persons. HUF is an association of person. When two or more persons come together, it becomes association. And मैंने बोला था association के लिए एक section है, section 464 of Indian section 464 of the Companies Act 2013, जिसमें एसोसिएशन के नंबर ऑफ लिमिट्स दिए, नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट दी है. एनी एसोसिएशन, उसमें लिखा था 100 से ज्यादा अगर पर्सन रहेंगे दैट हैज टू बी व्हाट, कंपनी, अदरवाइज इट इज इलीगल एसोसिएशन. तो वहां पे हमें पार्टनरशिप का क्या मिला था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मिला था 100, बट सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स नोटिफिकेशन 50 रखा है, एंड दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोफेशनल्स, राइट, गवर्न बाय स्पेसिफिक एक्ट, रजिस्टर अंडर स्पेसिफिक एक्ट. तो मैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन में वहां से उठा रहा हूं, ध्यान देना. सम एसोसिएशंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप लिख सकते हो तो अच्छी बात है, राइट. एसोसिएशन ऑफ पर्संस आर, सम आर इनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड, एंड सम आर इन राइट नॉन इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड. आपको जो ठीक लगता है वो बोलो, अनइनकॉर्पोरेटेड बोल दो, ठीक है. Which are not incorporated. Incorporated मतलब registered. ठीक है. होपफुली आप ये सर भी आपको थोड़ा डिटेल में बोलेंगे, राइट. मैं जस्ट एक मेरे लिए जितना रिलेवेंट है मैं उतना ले रहा हूँ, ध्यान देना. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इसको एओपी बोलते हैं टेक्निकली, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है. एंड अनइनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड associations of persons. Try to understand. इसमें what do you mean by incorporated? Registered ना, they are registered under, they are registered under some law or act. They are registered under some law or act. उनको हम रजिस्टर्ड एओपीज या इनकॉर्पोरेटेड एओपीज बोलते हैं. एंड नॉन इनकॉर्पोरेटेड और अन इनकॉर्पोरेटेड को हम बोलते हैं विच आर नॉट रजिस्टर्ड, विच आर नॉट रजिस्टर्ड. विच आर नॉट रजिस्टर्ड और विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड. नॉट रजिस्टर्ड और विच आर नॉट रिक्वायर्ड, मैंडेटरी नहीं उनका रजिस्ट्रेशन, ऐसे इनको हम बोलेंगे राइट अनइनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड एओपीज. मतलब ऐसे कौन से एसोसिएशन है जिनके लिए रजिस्टर मैंडेटरी, मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहता है या रजिस्ट्रेशन रहता ही नहीं. समझ में आ रहा है? तो इसको हम, इसमें आता है आपका कंपनीज. Companies are required to be registered under Companies Act 2013. 2013 के पहले एक्ट था 1956, राइट. सो मतलब 2013 के बाद ही कंपनी है ऐसे नहीं. उसके पहले जो कंपनीज थे वो उस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर था. उसके पहले भी कंपनी थे, वो अलग एक्ट में गवर्न करता था. समझ में आ रहा है? तो कंपनी आज से नहीं, जैसे मैंने पार्टनरशिप बोला,
पार्टनरशिप 1932 के पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में थे, उसके पहले इंग्लिश कॉमन लॉज के अंडर थे. ऑन सिमिलर बेसिस टुडे, राइट, हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013, उसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके पहले भी एक्ट अलग अलग थे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. सो कंपनीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज incorporated AOPs, always and always. Company in India cannot be, right, unregistered. It has to be registered, and it has to be registered under which act? Under Companies Act. Then some of the companies which are registered under other acts like statutory company होती है, सुना होगा आपने 11th या 12th में आपने किया होगा, राइट, स्टैट्यूटरी कंपनी, राइट. अगर याद होगा आपको, स्टैट्यूटरी कंपनी हुआ करती थी, राइट. सो स्टैट्यूटरी कंपनी मींस व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर सम लाइक लॉ, लाइक SBI इज स्टैट्यूटरी कंपनी, उसका एक्ट है. समझ में आ रहा है? सो एग्जांपल के तौर पे स्टैट्यूटरी कंपनी. देन या चार्टर्ड कंपनी होता था, अगर आपने 11th-12th में सीखा होगा, चार्टर्ड कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर द चार्टर इशूड बाय किंग वगैरह, क्वीन, वो पुराने वाले. लाइक इसमें एग्जांपल आता था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, बराबर ना. सो दे आर रजिस्टर्ड अंडर सम act, some law, right. So companies which are registered under Companies Act, or statutory company which are registered under some statute, right, other than Companies Act obviously I'm talking about, or chartered companies इसमें आगे, they are supposed to be registered. and ये जो होते हैं associations, इनके लिए registration mandatory नहीं होता है, right. कोई उसमें से register करते हैं, right, and कोई लोग unregistered रहते हैं. Example, partnership firms in Maharashtra are right, are registered association of persons, right. यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान देना, right. Partnership firms other than in Maharashtra, other than in Maharashtra, in Maharashtra are, right, they are, for them registration is not mandatory. हाँ, आप रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप करते हो तो इस कैटेगरी में आके बैठोगे, रजिस्टर की कैटेगरी में, अदरवाइज अनरजिस्टर के. एंड HUF is another, right, example of association person. HUF is not required to register, it is by operation of law. Try to understand. आप बोलोगे सर हम इनकम टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, राइट. मैं आपको, राइट, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ. सो अब ध्यान देना. सो यहां से मैं बोलता हूँ कंपनीज, हमें डिफरेंसेस ढूंढना है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ. कंपनी, यू मस्ट बी नोइंग, इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन व्हिच हैव परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, राइट. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड कैन बी डिसॉल्व्ड ओनली बाय लॉ. डिसॉल्व नहीं बोलते, लिक्विडेटेड बोलते हम लोग, राइट. पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, कंपनी लिक्विडेट होती है, राइट. ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक टर्म्स. कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज, मैं एकदम शॉर्ट में जा रहा हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, राइट. कंपनीज, ये आपको पता होगा, राइट. देयर आर, राइट, टाइप्स बहुत सारे होते हैं बिकॉज ऑन मेनी थिंग्स. एग्जांपल, राइट, बेसिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से हम बोलते हैं. एक हम बोलते हैं कि एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड दूसरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अच्छा आपको मुझे बोलना है, राइट, यू हैव टू पिंग मी व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. एनीवन, कोई मुझे बोल सकता है? इफ एनीवन कैन टेल मी, इट विल बी. आपने 11th-12th में किया है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितना पेड अप कैपिटल लगता है एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक एंड प्राइवेट को कितना लगता है? कैन एनीवन टेल मी? अच्छा, प्राइवेट के लिए कोई लिख रहा है 1 लाख, प्राइवेट के लिए कोई लिख रहा है 5 लाख, 1 लाख. नहीं, मुझे भी समझ में आएगा. आपने क्या सीखा है?
अच्छा ठीक है, देखता हूँ. Try to understand today as per new Companies Act there is no limit, no minimum limit of the paid up capital. You will learn, try to understand, right? So this is one of the significant feature कि ना ही प्राइवेट के लिए कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की जरूरत है, ना ही पब्लिक लिमिटेड की इतना कैपिटल के साथ ही कंपनी बन सकती है. वो आप जो आप 11-12 की बात कर रहे हो वो पुराने एक्ट की बात कर रहे हो, 1 लाख 5 लाख जो भी था. ठीक है, टुडे right, no minimum paid up capital is required for both private limited and public limited company. प्राइवेट लिमिटेड के अलग अलग टाइप्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अलग अलग टाइप्स है. तो मैं एक नॉर्मल टर्म बोल रहा हूँ. प्राइवेट लिमिटेड में राइट, which are the private limited companies, right? Private limited companies are those companies which are right through its AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. कोई भी कंपनी रजिस्टर करते हो तो आपको पता होगा 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, खाली मुझे समझाना है बिकॉज मुझे डिफरेंस लेने. एक लगता है एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दूसरा रहता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बराबर. सो ये नाम आपने सुन, आपको एटलीस्ट पता तो होनी चाहिए. एक होता है डॉक्यूमेंट एमओए, दूसरा होता है एओए. थ्रू एओए, एओए इज लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स, राइट? इफ ए कंपनी right through its AOA, articles of association, restricts number of members to 200, maximum number of private limited company is 200, maximum number of members is 200, partnership में 50. so this is first distinction, right? so private limited company में क्या होता है, a company which through its article restricts a company right to the 200 members. so private limited में maximum number कितने हो गए, 2, right? then it cannot, right, दूसरा क्या होता है, right, transfer shares, members cannot transfer share, prohibition on transfer of share, ट्रांसफर ऑफ शेयर अलाउड नहीं होते. सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो मैक्स टू मैक्स कितने होंगे, 200 मेंबर्स होंगे. 200 मेंबर्स बोल रहा हूं मैं, राइट? जॉइंट शेयर होल्डर्स विल बी ट्रीटेड एज वन. अगर एम्प्लॉइज को आपने शेयर्स दिए थ्रू ईसॉप, एम्प्लॉइज लाइक एम्प्लॉइज को अगर हमने ईसॉप के थ्रू अगर शेयर्स दिए तो दे आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन दिस 200. सो मैं बोल रहा हूँ 200 मैक्सिमम मेंबर्स, उससे ज्यादा मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं हो सकते. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड. यू कैन नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप इन द शेयर्स. आप कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ अदर शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू आप वो करोगे. एंड थर्ड, राइट, थर्ड होता है, राइट, you cannot invite public to subscribe your securities. मतलब public invitation is prohibited. हम हमारे शेयर्स थ्रू प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, राइट? सो public invitation is not allowed. So I cannot go to the public at a large and right issue them prospectus, राइट? मतलब मैं उनको प्रोस्पेक्ट इश्यू करके आई कैन नॉट आस्क देम टू सब्सक्राइब माय शेयर. जनरली इसमें हम जो हमारे क्लोज रहते रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल में शेयर्स इश्यू करते हैं. सो अगर कोई भी कंपनी उसके आर्टिकल्स के थ्रू ये 3 रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, कौन से 3 रिस्ट्रिक्शंस? राइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस इज 200, दूसरा ऑन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एंड तीसरा रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक इन्विटेशन. अगर ये 3 रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसे कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोला जाता है. उसके नाम पे उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोला जाता है, एंड उस कंपनी के नाम के सामने प्राइवेट लिमिटेड होता है. समझ में आ रहा है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आज नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी? ऑल दोज कंपनीज व्हिच आर नॉट प्राइवेट लिमिटेड आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. मतलब उनके इसमें 200 लिमिट नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट, राइट? दूसरा, दे कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स फ्रीली, दे कैन ट्रांसफर देयर शेयर फ्रीली. एंड तीसरा, राइट, जो पब्लिक इन्विटेशन पे जो प्रोहिबिशन था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, राइट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन गो टू पब्लिक इन जनरल and can request them to subscribe their shares, debentures, securities.
समझ में आ रहा है? सो इन सिंपल वर्ड, ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उस कंपनी के नाम के सामने लाइक जस्ट लिमिटेड होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिकॉज उसके सामने खाली लिमिटेड है, राइट? उसके नंबर ऑफ शेयर्स आर मोर देन 200, राइट? Then one can transfer shares without the permission of other shareholders, and company, right, through IPO, initial public offering, or through FPO, further public offer, right, can raise the funds from the public at a large. So ऐसे कंपनीज को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, राइट? टाटा मोटर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL, ये सब एग्जांपल्स है आपके, राइट? जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। ओएन, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर ऑलवेज, अब एक तो मैंने, राइट, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये डिफरेंशिएशन में चाहिए, और इसके एक्चुअल लिमिट्स वगैरह आपको सब कंपनी लॉ में मिलेंगे। तो मैंने बोला कंपनी, मैं टाइप ले रहा हूँ, कौन से बेसिस पे जा रहा हूँ ध्यान देना, नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से। तो एक मैंने बोला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है? दूसरा मैंने बोला पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये पता होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड में 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक 200 मेंबर्स, दूसरा, राइट, ट्रांसफर प्रोहिबिटेड, prohibition on the transfer of shares, and तीसरा prohibition on invitation to the public to subscribe the securities. You cannot offer public deposits, हम लोगों से डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, राइट? अगर ये है तो, अगर ये रिस्ट्रिक्शन है थ्रू AOA, सच कंपनीज आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में ये रिस्ट्रिक्शंस होते नहीं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, आपको पता होगा शेयर्स लिस्ट होते हैं या नहीं होते, राइट? क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, आई विल टेक द क्वेश्चंस, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है? प्राइवेट, आपने ये सुना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स लिस्ट होते हैं। कौन से कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, राइट? प्राइवेट लिमिटेड आर ऑलवेज एंड ऑलवेज अनलिस्टेड कंपनीज बिकॉज, राइट, प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट लिस्ट इट्स शेयर। However, public limited companies can be listed companies, मतलब इनके शेयर्स दे लिस्ट on recognized stock exchange, they list on which recognized stock exchange, ध्यान देना। so any one recognized stock exchange, इंडिया में बेसिकली दो मोस्ट recognized stock exchange है, एक है NSE एंड दूसरा है BSE। BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स एंड NSE का निफ्टी, एंड बोथ आर इन मुंबई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों मुंबई में, लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज। So some public, okay, ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, नेट कनेक्टिविटी का इश्यू था। सो हाँ, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन, पहले खत्म तो करने दो, फिर आप में भी उसमें आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? सो private limited companies can never list their shares on recognized stock exchange, therefore they are always unlisted. However, public limited companies may list their shares on recognized stock exchange. अगर वो लिस्ट करते तो they are also governed by SEBI Act, because listing SEBI के थ्रू होती है। तो listed companies has to comply 2 acts basically, एक तो Companies Act तो ही है, at the same time SEBI के regulations, ठीक है? And unlisted companies are, right, those public companies which do not list their shares on recognized stock exchange are unlisted companies. Example मैं बोलता हूँ, Reliance Industries Limited is a public limited company and listed one because its shares are available on the recognized stock exchange. इनके शेयर में तो कोई ट्रांसफर बहुत फ्री होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज नॉट एट ऑल रिस्ट्रिक्टेड, हम इजीली परचेस कर सकते हैं, इजीली सेल कर सकते हैं, बिकॉज ये सब डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है, राइट? राइट, टाटा मोटर्स लिमिटेड, राइट, then Maruti Udyog Limited, MUL, Tata Sons Limited, all these are which listed companies. Then ONGC, another example. Oh. So मैं बोल रहा था लिस्टेड एंड अनलिस्टेड का, ठीक है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज अनलिस्टेड, हाउएवर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कैन बी लिस्टेड और कैन बी, राइट, अनलिस्टेड, ठीक है? सो लिस्टेड में आप
गूगल पे जाओ, आपको बीएससी के वेबसाइट पे जाओ, आपको जितने सारी कंपनीज मिलेंगे ना, दे ऑल आर यूर लिस्टेड कंपनीज। देन उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, राइट। उसके एग्जांपल आप नॉर्मल कंपनीज दे सकता हो। एग्जांपल में आपको एग्जांपल दे सकता है, साई सर्विस पता होगा, राइट। साई सर्विस लिमिटेड है, साई सर्विस लिमिटेड है, मतलब इट इज अ पब्लिक लिमिटेड, इट इज नॉट प्राइवेट लिमिटेड। उनका नाम है साई सर्विस लिमिटेड, बट इट शेयर्स आर नॉट लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। उसके शेयर्स अगर हमें परचेस करने हैं तो फिजिकली हमें उस जिसके पास शेयर्स है उसको ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? he can sell the shares because it is public limited company, उनका restriction नहीं है, but that is very difficult basically. So try to understand, जब भी हम बोलते हैं पार्टनरशिप में, a partner cannot share, he right cannot transfer his share in the partnership to other person without the consent of the partners. क्या बोला? a partner cannot share his share in the firm to third person without the consent of other partners. However, in case of private limited company, a shareholder cannot transfer his share. There are restrictions. In case of public limited company, right, shares are freely like transferable. So this is another distinction between, पहले distinction मैंने क्या बोला? Number of members. कंपनी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 50 मेंबर्स। कंपनी के केस में ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, एक्सेप्ट मिनिमम 2 मेंबर्स, एक्सेप्ट ओपीसी। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, किसी ने उस दिन मुझे पूछा था, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी इज अ टाइप ऑफ, राइट, यूर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली, जिसमें ए सिंगल पर्सन, राइट, कैन स्टार्ट ए कंपनी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। And in case of public limited company, minimum numbers are 7. Minimum number is 7. 7. Maximum number private limited में कितना है? 200. And public limited में कुछ है क्या? नहीं है. So first distinction, right? Companies are always registered. Partnership are registered, right? Registration is optional. फिर partnerships are governed by Indian Partnership 1932. Companies are governed by Indian Companies Act 2013. उसके बाद थर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस। पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, गिवन बाय सेक्शन 464, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट ओनली। एंड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। उसके बाद राइट, restriction on transfer of share or interest in the organization. Partner cannot transfer his share in the firm without the consent of all other partners. Company के केस में, right? In case of private limited company, there is a prohibition or restriction. Prohibition की better word is restriction. You can transfer, but you have to take the permission. There is a restriction on the transfer of share. In case of public limited company, right? Shares are freely tradable, shares are freely transferable. उसमें भी दो होते हैं, listed and unlisted. So public limited companies may be listed or may be unlisted. Private limiteds are always and always unlisted. ये मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए। अच्छा, एक इसके हिसाब से था, तो always remember there is no minimum capital requirement. प्राइवेट लिमिटेड के अलग अलग टाइप्स है, प्राइवेट लिमिटेड के भी अलग अलग टाइप्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कौन से होते हैं? एक अभी मैंने बोला ओपीसी, एक है स्मॉल कंपनी, एंड तीसरा मैं अदर्स बोल दूंगा। ओपीसी मैंने बोला था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, एक्सेप्शन इज ओपीसी, ओपीसी में एक ही पर्सन होता है। स्मॉल कंपनी में, राइट, स्मॉल कंपनीज आर दोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वेयर पेड अप कैपिटल इज, राइट, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, वेयर पेड अप कैपिटल इज, कितना है पेड अप कैपिटल इज 50 lakhs। और मैंने बोला देयर इज नो मिनिमम लिमिट ऑन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 lakhs या 50 lakhs से कम है, उसको स्मॉल कंपनी बोला जाएगा। अगर उससे ज्यादा है वो अदर्स के कैटेगरी में जाएगा। समझ में आ रहा है? सो पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 lakhs। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल
पेड अप कैपिटल, कैपिटल उनका राइट 50 lakhs है, डज नॉट एग्जिट 50 lakhs, और टर्नओवर मतलब सेल्स और टर्नओवर, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 5 CR, दोनों में से एक, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मतलब दोनों कंडीशन, योर टर्नओवर इज लेस देन 5 CR, प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर लेस देन 5 CR, पेड अप कैपिटल इज आल्सो लेस देन 50 lakhs, उसको हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। और है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर पेड अप कैपिटल लेस देन 50 lakhs है बट टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है तो वो स्मॉल कंपनी रहेगी, वो अदर्स में जाएगा। समझ में आ रहा है? बट मिनिमम कहाँ पे लिखा नहीं है, मिनिमम कैपिटल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो भूल जाओ जो आपने 11-12 में सीखा, ठीक है। देन आगे एक और टाइप आपने सीखा था, वो भी मैं अभी ले रहा हूं बिकॉज वो मुझे चाहिए। आपने सुना होगा पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज। समझ में आ रहा है? पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी, ये राइट। सो मैं सेक्टर के हिसाब से जा रहा हूं, सेक्टर आई मीन ओनरशिप, all those companies where ownership 51%, मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 51% ओनरशिप, मतलब कंपनी के केस में आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल, शेयर कैपिटल, 51%, मिनिमम 51% कैपिटल इज हेल्ड बाय, पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। ऐसी कंपनी जिसमें 51% कैपिटल या 51 से ज्यादा कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, ऐसे कंपनी को पब्लिक सेक्टर कंपनी बोला जाता है या गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड अगर कोई ऐसी कंपनी जिसमें 51% से ज्यादा कैपिटल अदर देन गवर्नमेंट ने होल्ड किया है, प्राइवेट सेक्टर ने होल्ड किया है, उस कंपनी को हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनी। तो गवर्नमेंट में आता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कंबाइन। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दोनों साथ में आके 51% से ज्यादा कर रहे हैं। एग्जाम्पल, स्टेट गवर्नमेंट के पास 30% है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 21% है उसकी ओनरशिप, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 51%। तो दैट कंपनी इज नाउ विच कंपनी? पब्लिक सेक्टर कंपनी। And private sector company, example Reliance Industries Limited is a private sector company because 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग is with private people, not the with the government। ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना ही कंबाइन में 51% से ज्यादा है। अगर एग्जांपल 49% गवर्नमेंट के पास है एंड 51% प्राइवेट के पास है तो वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो गई। एंड अगर उल्टा है, मिनिमम 51% गवर्नमेंट के पास है एंड 49% मैक्सिमम, मिनिमम 51% गवर्नमेंट के पास है, मैक्सिमम 49% अगर प्राइवेट के पास है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गई, राइट। सो इसमें राइट, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आर कंपनीज विच आर नॉट पब्लिक सेक्टर कंपनी, राइट। मतलब इसमें मिनिमम राइट 51% कैपिटल प्राइवेट के पास आएगा, हेल्ड बाय प्राइवेट। अब आप बोलोगे सर ये अलग है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बोलता हूं ओएनजीसी, ओएनजीसी इज पब्लिक सेक्टर कंपनी बिकॉज 51% से ज्यादा कैपिटल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, राइट। एट द सेम टाइम ओएनजीसी is a public limited company because ONGC does not restrict number of members to 200, does not restrict right public to like subscribe the shares and does not restrict transfer of shares। मतलब try to understand मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। पब्लिक सेक्टर कंपनी कैन बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कैन बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कैन बी प्राइवेट और कैन बी, देखो प्राइवेट अलग, प्राइवेट लिमिटेड अलग एंड प्राइवेट सेक्टर अलग, पब्लिक सेक्टर अलग एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी अलग। ओएनजीसी, अगर आप ओएनजीसी देखते हो, ओनरशिप देखो किसके पास ज्यादा ओनरशिप है? 51% ज्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, तो ये कौन सी कंपनी होगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गई। इसके शेयर्स लिस्ट है क्या? हाँ, ये लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड है मतलब ऑब्वियसली पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई। पुणे एयरपोर्ट पता है ना, पुणे एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट is, try to understand, public sector। पुणे एयरपोर्ट is a public sector
बिकॉज उसमें ओनरशिप 51% से ज्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, बट उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है, वो अनलिस्टेड है। इसके राइट वो अनलिस्टेड है, तो अनलिस्टेड कैन बी पब्लिक लिमिटेड और कैन बी प्राइवेट लिमिटेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, द ओनरशिप इज ओनली विद द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट डज नॉट ट्रांसफर द शेयर। उसके जो शेयर्स है पुणे एयरपोर्ट के, उसके शेयर्स नॉर्मल पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पुणे एयरपोर्ट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हाउएवर इट इज अ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्यों? बिकॉज उसमें जो ओनर है वो मैक्सिमम ओनर गवर्नमेंट है, एंड गवर्नमेंट राइट वो जो ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, इसलिए वो पब्लिक सेक्टर है। एंड व्हाई इट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? बिकॉज उसके आर्टिकल्स ने 3 रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे। मेंबर्स कैन नॉट एग्जिट 200, वो जो भी 200 रहेंगे या 200 से कम रहेंगे वो सब गवर्नमेंट है मैक्सिमम। उसके बाद राइट उनके शेयर्स राइट ट्रांसफरेबल नहीं है। एंड तीसरा राइट दे कैन नॉट अप्रोच कॉमन पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स। उनके जो भी शेयर्स है वो गवर्नमेंट ने सब्सक्राइब किया, ऐसे समझो। सो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ओएनजीसी, और दूसरा मैंने दिया एग्जांपल पुणे एयरपोर्ट। ओएनजीसी एंड पुणे एयरपोर्ट में मैक्सिमम ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, इसलिए वो गवर्नमेंट कंपनीज है या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। सेक्टर वाइज अलग एंड इसके वाइज अलग। सो वो प्राइवेट लिमिटेड है पब्लिक लिमिटेड है, तो आपको देखना है वो रिस्ट्रिक्शंस। पुणे एयरपोर्ट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ownership is with the government right, and government does not allow others to become owner, या उसके restrictions है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। वही ओएनजीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बिकॉज उसके आर्टिकल डज नॉट रिस्ट्रिक्ट दोस 3 limitations। तो ये पता होना चाहिए। सो मैं वही बोल रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर कंपनी कैन बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कैन बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इट कैन बी लिस्टेड, इट कैन बी अनलिस्टेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्राइवेट सेक्टर कंपनी can be private limited company, can be public limited company. Like example इसमें आएगा Reliance Industries Limited is a public limited company. It is a private sector company because ownership 51% ownership किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। या सॉरी रिलायंस की 51% से ओनरशिप किसके पास है? राइट अदर देन गवर्नमेंट है, तो ये प्राइवेट सेक्टर हो गई। अगर इस केस में जाओगे तो इट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड अगेन उसमें कौन सी है? वो लाइक लिस्टेड कंपनी है। सो हर क्राइटेरिया अलग अलग है। देन सो बेसिकली हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से, रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से इन एओए आर्टिकल सबसेक्शन, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ओनरशिप के हिसाब से, ठीक है। एंड द लास्ट वन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू लिमिटेड कंपनी, limited liability company, and at the same time there are unlimited liability companies as well. ऐसे मत बोलो कि कंपनीज अनलिमिटेड, कंपनीज में अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, देयर लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द शेयर कैपिटल, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर to the share capital, or it is their liability is limited to guarantee. And तीसरा दोनों, limited by shares capital और limited by guarantee both. So liability of the members is limited to the extent of unpaid value on the shares. Suppose एक शेयर की वैल्यू थी, इशू प्राइस थी एग्जांपल 1000, उसमें से कंपनी ने मेंबर से, शेयर होल्डर से 800 लिया है। एक शेयर की वैल्यू 1000 है, member has paid 800 to company, still 200 is payable. So in that case that member's liability is 200 unpaid value of the shares multiplied by number of shares held. ऐसे कंपनीज को बोला जाता है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। सम कंपनीज जिसमें जो मेंबर्स होते हैं दे डिसाइड और दे गारंटी, वो गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी लिक्विडेट होगी एंड अगर उस लिक्विडेशन में दे कैन नॉट पे टू इट्स क्रेडिटर्स, so they will contribute a fixed amount. They have given guarantee to contribute a fixed amount at the time of liquidation. ऐसे कंपनीज को लिमिटेड बाय गारंटी बोलते हैं। इसमें आती है आपकी सेक्शन 8 कंपनी, इसमें आपकी सेक्शन 8 कंपनी आती है। सेक्शन 8 कंपनी मैंने आपको
राइट, पार्टनरशिप बिजनेस के इसमें समझाया था। पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल एक्टिविटी, इट हैज टू डू द बिजनेस। हाउएवर फॉर नॉन राइट फॉर चैरिटेबल पर्पस we can float a company, and that company is section 8 company which is limited by guarantee. The members guarantee that in case of charitable purpose के केस में जो members होते हैं सेक्शन 8 कंपनी, उनके मेंबर्स गारंटी करते हैं जब कंपनी लिक्विडेट होगी, अगर कुछ पैसा कम पड़ेगा क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, दोज मेंबर्स विल कंट्रीब्यूट। सेक्शन 8 कंपनी इज ऑलवेज लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। एंड बोथ मतलब उसमें दोनों होते हैं, राइट, they are limited by share capital, they are limited by guarantee both. And there are companies where the liability of the members is unlimited. मैंने एक बारामती में एक ऑडिट किया था when I was doing my articleship during my CA। एक बारामती में एक कंपनी थी, बारामती के उधर MIDC में, राइट। I actually मुझे याद नहीं वो कंपनी का नाम आज, बट दैट कंपनी वाज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। उनके नाम के सामने लिखा होता है इनटू ब्रैकेट अनलिमिटेड। इस केस में द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज नॉट लिमिटेड इफ कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू पे इट्स लायबिलिटीज, पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर्स विल बी हेल्ड लायबल। तो इट इज नथिंग बट लाइक पार्टनरशिप ऐसे देखा जाए तो, राइट। जैसे पार्टनरशिप में लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, हम कंपनीज के केस में अब क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ कंपनीज राइट विच आर लिमिटेड बाय कैपिटल, राइट, उनके केस में लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। जो शेयर्स की वैल्यू पेड की है वो लायबिलिटी नहीं है, जितना पे करना बाकी है, राइट, उतनी उनकी लायबिलिटी रहेगी। इन केस ऑफ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द गारंटी। एंड राइट, in case of companies which have unlimited liability companies, which are unlimited liability companies, उसके केस में liability is unlimited। so मैं ये समझा रहा हूँ, try to understand। अब ये जो मैं तब पूरा वो नोट्स निकालूंगा ना उसमें ये सब मेंशन किया है, ठीक है। so try to understand, मैं टाइप्स ऑफ कंपनी समझा रहा था और उसमें मुझे कोई चीजें समझानी तो मैं समझा रहा था, आपको समझ में आ रहा है। so one must understand, right, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। so right, अगर आपको कोई पूछता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी, पहले ये देखते जाओ, ये किसके हिसाब से रहेगा, हु इज द रियल ओनर। इफ रियल ओनर मतलब 51% है, इफ इज गवर्नमेंट टुगेदर, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर और इंडिविजुअली, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अगर मैंने क्या बोला, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर है ढूंढना, तो आपको क्या देखना है, हु इज रियल ओनर। अगर गवर्नमेंट है तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी, अगर राइट प्राइवेट है तो वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी होगी। फिर दैट कैन बी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट कैन बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी और इट कैन बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें आया एग्जांपल ONGC और इसमें आया पुणे एयरपोर्ट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी दो टाइप्स के होते हैं, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। प्राइवेट आर ऑलवेज एंड ऑलवेज अनलिस्टेड, उसका कोई टाइप नहीं रहेगा फिर आगे, राइट। प्राइवेट को आप ऐसे बोल सकते हो, प्राइवेट को मैंने ऊपर लिखा था, प्राइवेट कैन बी, इधर देखो, राइट, ऊपर किधर तो था, किधर गया वो, हाँ, OPC और स्मॉल कंपनी और अदर्स, ठीक है। देन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आर, प्राइवेट सेक्टर में रियल ओनर इज प्राइवेट, दे कैन बी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, एंड दूसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड, राइट, इसमें कौन आ गया एग्जांपल, ON इस राइट, इसमें आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, एंड सपोज इसमें आ गया PNZ प्राइवेट लिमिटेड, PNZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सो
या एग्जांपल देता हूँ, फ्लिपकार्ट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फ्लिपकार्ट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट्स वेरी वेल एस्टेब्लिश, जो सबको नाम पता है, और आपको कोई भी एग्जांपल देगा, फ्लिपकार्ट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देन राइट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया, राइट, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ए प्राइवेट सेक्टर कंपनी, इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और उसमें वो क्या आएगा, लिस्टेड आ गया या अनलिस्टेड हो सकता है, बट ये किस रिलायंस किस में आ जाता है, राइट, लिस्टेड में आ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो राइट, मैंने यहाँ पे ओएनजीसी इधर लिखना चाहिए और यहाँ पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखना चाहिए। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी and private sector company. ONGC is a listed company. It is a public limited company, but public sector company. ठीक है? So ये मुझे सब चीजें बोलनी थी, और ये भी पता होगा आपको कि पार्टनर्स को क्या मिलता है, शेयर मिलता है, शेयर इन द प्रॉफिट, एंड मेंबर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड। जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, सम ऑफ द प्रॉफिट्स आर गिवन इन द वे ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड मिलता है, राइट, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, राइट। डिविडेंड कौन से, कोई भी शेयर होता है, ये पता होगा आपको, मैं डीप में नहीं, मैं कंपनी अकाउंट्स में और अच्छे से सिखाऊंगा। उसकी एक फेस वैल्यू होती है, जिस फेस वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती है। दूसरी होती है इश्यू प्राइस, जब शेयर्स पब्लिक को इश्यू करते हैं, कौन से प्राइस पे इश्यू होता है, दैट प्राइस इज इश्यू प्राइस। तीसरी होती है उसकी आई विल से मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस, जिसकी आज जो मार्केट में जिसकी जो ट्रेड आज किस पे ट्रेड हो रहा है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो मार्केट वैल्यू है। फेस वैल्यू पे के हिसाब से हम डिविडेंड देते हैं। सो डिविडेंड इज गिवन एज पर राइट फेस वैल्यू। इश्यू प्राइस के हिसाब से अकाउंटिंग होती है। इफ इश्यू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, हम बोलते हैं इश्यू एट प्रीमियम। इफ दे आर सेम, हम बोलते हैं इश्यू एट पार। अगर कम होता है, विच इज प्रोहिबिटेड बेसिकली इन केस ऑफ कंपनीज, राइट, इश्यू एट डिस्काउंट। एंड मार्केट प्राइस के हिसाब से इन्वेस्टर के बुक्स में अकाउंटिंग होती है, कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग इनके हिसाब से होती है, एंड इन्वेस्टर के बुक में अकाउंटिंग मार्केट प्राइस के हिसाब से होती है। ये आप ये हम फाउंडेशन में सीखेंगे, कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टर के बुक्स में अकाउंटिंग हम लाइक इंटर में सीखेंगे। अब ध्यान देना, सो डिविडेंड इज गिवन ऑन पेड अप फेस वैल्यू, ऑन पेड अप कैपिटल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स and partnership firm gives profit to the owners, that is partners। उसके बाद राइट एक डिफरेंशिएशन था और कुछ, यस, पार्टनरशिप इज के लिए जो डॉक्यूमेंट रहता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप को रजिस्टर करना है तो हमें पार्टनरशिप डीड फॉर्म कर राइट बनानी होगी, और हम रजिस्टर करते हैं। पार्टनरशिप रजिस्टर की जाती है आरओएफ के पास, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, एंड कंपनी रजिस्टर की जाती है आरओसी के पास, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओएफ इज अ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, राइट। ये यहाँ पे हम डीड सबमिट करते हैं विथ अदर डॉक्यूमेंट्स, हमारी फर्म रजिस्टर हो जाती है। यहाँ पे हम एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबमिट करते हैं, तो हमारी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, राइट। इसके बाद जब हम रजिस्टर करते हैं, हमें दो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ राइट रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि हम रजिस्टर हो गए बोल के एक सर्टिफिकेट पहले मिलता है, एंड दूसरा मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जब हमें कंपनी रजिस्टर करनी है तो हमें किसके पास जाना होता है, आरओसी के पास जाना होता है। उसको हमें दो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब हम सबमिट करेंगे तो क्या होगा, वो हमें राइट दो सर्टिफिकेट देगा। एक सर्टिफिकेट पहले जो मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यस यू हैव बीन रजिस्टर्ड, एंड उसके बाद हमें मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। प्राइवेट लिमिटेड के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से काम हो जाता है, वी कैन स्टार्ट डूइंग द बिजनेस। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के केस में हमें दोनों चाहिए होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज वेल एज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। उसके बाद ही पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, राइट। सो
ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। यहाँ पे रहता है डीड, यहाँ पे रहता है MOAN AOA, यहाँ पे रहता है रजिस्टर ऑफ फर्म्स, यहाँ पे रहता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। नाउ अब मैं टैबुलर में जाता हूँ, जो नोट्स में लिखा है, अब हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, वैसे वो डिफिकल्ट हो जाता मुझे समझाना, इसलिए मैंने थोड़ा कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया। देखते हैं, एक सेकंड, सबसे लास्ट वाला वही है और सबसे बड़ा वही है। एंड देख, मैंने उस दिन आपको फॉर्मेट भेजा था, एक जनरली एक्सेप्टेड फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम, उसमें डिस्टिंग्विश 3-4 क्वेश्चंस में, तो ये मैटर करेगा। ठीक है, एंड थोड़ा ठीक से लिखना है, ना कि 12 के जैसा। पार्टनरशिप इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी देन इट्स ओनर. Company is a separate legal entity than its owner, that is shareholders. So, legal entity. Partners are collectively termed as firm and does not enjoy separate legal existence. Members are separate from the company and has a separate legal existence. Company is a separate than its member. Tenure, you know, partnership at will can be dissolved by giving notice in writing. समझ में आ रहा है? सो आई सिंपली मीन देयर इज नो फिक्स टेन्योर, इट राइट, कभी भी वो क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। सो नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग, कंपनीज हैव परपेचुअल एग्जिस्टेंस इवन, राइट, अगर पार्टनर की डेथ होती है एंड नथिंग इज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, ऑलरेडी डीड में कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट फर्म क्या होती है, डिसॉल्व होती है। हाउएवर डेथ ऑफ ए शेयर होल्डर डज नॉट अमाउंट टू, राइट, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी परपेचुअली चलती है। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, ये हमने डिस्कस किया था, अब ध्यान देना। इन ए पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. This means that each partner is liable for the debts of the firm incurred in the course of business of the firm, and these debts are recovered from the private property if joint property or joint estate is insufficient to pay the liability wholly. Right? अगर firms की जो asset है, if they are insufficient to pay off the liabilities of the firm, then your private property is attached. That is unlimited liability concept. अब कंपनी केस में तीनों लिखा है, देखो, राइट। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगा तो आपकी लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स. द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी ऑन द अनपेड ऑन हिज शेयर्स. शेयर्स पे जितना पे करना बाकी है उतना ही उसकी लायबिलिटी रहेगी, उससे ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करेगा क्या, नहीं. बट इन केस ऑफ गारंटी कंपनी, द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट विच हैज बीन एग्रीड, राइट, जो हर मेंबर ने गारंटी दी है, राइट, कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, उतनी उनकी लायबिलिटी रहेगी. हाउएवर देयर मे बी कंपनीज वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड. मैंने बोला लायबिलिटी के हिसाब से 3 कंपनीज है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, अनलिमिटेड कंपनी. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड बोथ. समझ में आ रहा है? तो ये पता होना चाहिए. एंड सेक्शन 8 कंपनीज आर लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये भी मैंने समझाया. ए शेयर इन द पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. मतलब रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में इन पार्टनरशिप. इन ए कंपनी a shareholder may transfer the shares subject to provisions contained in articles of association. Private limited company में there is a restriction on the transfer of shares. In case of public limited company में there is no such restriction. देखो क्या लिखा है. In case of public limited companies whose shares are quoted on the stock exchange, public limited companies can be listed or can be unlisted. जो listed है उनके केस में, right, usually unrestricted. Transfer of shares is usually unrestricted. आपको हर चीज ठीक से लिखनी होगी बिकॉज दोनों एक्ट आपके सिलेबस में है. देन एजेंसी, पार्टनर्स के बीच में कैसी रिलेशनशिप रहती है, म्यूचुअल एजेंसी रहती है. शेयर होल्डर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन रहता है कि नहीं, बिकॉज वैसे भी कंपनी एंड शेयर होल्डर्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. एंड एट द सेम टाइम, राइट, द relation between the shareholders is not of the mutual agent. Mere acts does not make, I am a shareholder of the Reliance, my acts does not make liable the Reliance Industries Limited or any other shareholder of Reliance Industries Limited. So simple है, right, we are not mutual agent. तो क्या लिखा है ध्यान देना.
each partner represents the other partner so as to bound to other partners, no agency relationship among the shareholders. Then distribution of the profit, ये भी समझेगा. Profits are distributed in accordance with the partnership deed. No compulsion of the distribution of the profit. A company, it's a discretion of the company or the board of directors to declare dividend और नॉट टू डिक्लेयर द डिविडेंड. मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इन्फोसिस, राइट, अभी फिलहाल वो डिविडेंड दे रहे हैं, बट देयर आर लाइक कंटिन्यूस 10 to 12 years उन्होंने डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं किया था शेयर होल्डर्स को. दे यूज टू प्लग बैक दैट प्रॉफिट इनटू बिजनेस एक्सपेंशन के लिए वो प्रॉफिट्स यूज करते थे. सो कंपल्शन नहीं कि डिविडेंड देना ही है, बट अगर एक बार डिसाइड किया ना डिविडेंड देना है, दे कैन नॉट लाइक टेक बैक देयर डिसीजन. मतलब क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. डिविडेंड डिक्लेयर करना, प्रॉफिट अगर शेयर होल्डर्स को देना है तो डिविडेंड के थ्रू दिया जाता है, एंड इट इज नॉट मैंडेटरी. तो देयर आर मेनी कंपनीज हु डू नॉट गिव डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स. वो बोलते हैं पैसा बिजनेस में रहने दो, बिजनेस और इंक्रीज होगा, आपके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी. समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी. तो लोग वो कंपनीज जनरली डिविडेंड देते नहीं. इन दैट केस कंपलसरी नहीं है डिविडेंड देना, बट अगर आप एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो आपको डिविडेंड देना ही पड़ता है. नो कंपल्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ profits. Members get share of the profits only when dividend is declared. Management. Who do the management of the partnership firm? Partners or active partner. समझ में आ रहा है? Partners manage all the management. कंपनी के केस में क्या होता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, right? And board of directors manage the company. They are the divorce of the management and the ownership in the company. ये वर्ड आपने सुना होगा 11th-12th में, divorce of ownership and the management. Every owner, every shareholder do not take part in the like company's affairs. Try to understand. Representatives of the shareholders are called as board of directors. They manage the business for all the shareholders. Members can participate in the management only if appointed as a directors. They can, however, attend and vote in the meetings, like while appointing directors and auditors. Every company is supposed to take like AGM, annual general meeting. AGM बोलते, annual general meeting, right? 15 मंथ्स में एक बार लेना होता है, 15 मंथ्स में एक बार लेना होता है कंपनी लॉस के हिसाब से. तो जो भी एजीएम रहेगी उसमें शेयर होल्डर्स, राइट, विल वोट. तो उसमें सब मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं, एंड उसमें क्या किया जाएगा, शेयर होल्डर्स विल वोट. सो लाइक अपन कौन ऑडिटर होना चाहिए, राइट, कौन डायरेक्टर्स होना चाहिए, इसके लिए वोटिंग होती है. मेजोरिटी वोटिंग जिसको मिलेगी वो ऑडिटर होगा, या वो क्या रहेगा, आपका डायरेक्टर्स रहेगा. सो राइट, शेयर होल्डर्स कैन वोट, but shareholders cannot take part in the day-to-day management. If they have to take, they have to get elected as a board of directors. Property, ये भी important है. Partnership property is not a partnership की property, actually it is a property of the partners. They jointly own it. Co-ownership रहती है वहां पे, right? So क्या लिखा, ध्यान देना. The firm's property is that which is the joint estate of all the partners, distinguished from separate estate of them. मतलब एग्जांपल, A, B and C are the partners. इन तीनों ने मिलकर एक बिल्डिंग ली है, एक शॉप लिया है, एंड A की भी एक खुद का शॉप है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये उसका इंडिविजुअल शॉप है, इंडिविजुअल एसेट है, और ये पार्टनरशिप की एसेट है. इसमें इसका भी ओनरशिप है, इसमें राइट B की भी है और इसमें C की भी है. लेकिन ये जो उसका खुद का शॉप है उसमें बी एंड सी का ओनरशिप है क्या, नहीं. सो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप प्रॉपर्टी अलग होती है एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर अलग होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कंपनी में वैसे नहीं होता, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, उसमें शेयर होल्डर कैन नॉट, राइट, बोल नहीं सकते कि ये मेरी प्रॉपर्टी है. समझ में आ रहा है, बिकॉज कंपनी इज ए सेपरेट. बट ये जो बिल्डिंग है, इस एक्चुअली इसकी ओनरशिप किसके पास है, ABC. तो वही लिखा है, द फर्म्स प्रॉपर्टी इज दैट which is joint estate of all the partners. उनकी वो joint estate है, and it is to be distinguished from their separate estate of any one of them, and it does not belong to the body distinct in the law, right, from its member. And हम ऐसे नहीं बोलते कि वो अलग है, वो बिल्डिंग ABC की है, ठीक है, because firm and members are not separate.
आगे क्या लिखा है कंपनी के केस में, अगर कंपनी के रिलायंस के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो उसके शेयर होल्डर्स की नहीं हो सकती, समझ में आ रहा है, बिकॉज शेयर होल्डर्स एंड रिलायंस इज डिफरेंट, company and shareholders is different. In a company, its property is separate from that of its members who can receive it back only from the right in the form of dividend or the refund of the capital. Registration मैंने बोला था not compulsory in case of partnership, right? Company has to register. It can right इसका birth ही होता है registration in Companies Act. A company cannot come into existence unless it is registered under the Companies Act 2013. मैंने स्टार्ट ही वहां से किया था, AOP, registered and unregistered. ठीक है, winding up. A partnership firm can be dissolved at any time if all partners agrees. ठीक है. What in case of company? A company being legal person is either right wound up by नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसको एनसीएलटी बोलते हैं. अगर हमें कंपनी को लिक्विडेट करना है तो हमें एनसीएलटी में अप्रोच करना होगा. ये ट्रिब्यूनल है, ये कोर्ट है कंपनीज के लिए, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राइट. और इट्स नेम इज स्ट्रक ऑफ बाय द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज, आरओसी, बिकॉज आरओसी के पास सब कंपनीज का रजिस्ट्रेशन रहता है. अगर राइट अगर रजिस्ट्रार आपका नाम डिलीट करता है किसी कारणवश, अगर आपका नाम वहां से डिलीट करता है तो योर कंपनी गेट्स लिक्विडेटेड, योर कंपनी गेट्स वाउंड अप. सो देयर आर टू वेज बाय व्हिच ए कंपनी गेट्स वाउंड अप. एक, आपको एनसीएलटी में अप्लाई करना होगा कि हमारे कंपनी को लिक्विडेट करो, या राइट डिफंक्ट कंपनीज रहते हैं, हमने रजिस्टर कर, हमने इनकॉर्पोरेट करके रखे हैं, रजिस्टर कर रखे हैं, उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है. ऐसे बहुत सारे डिफंक्ट कंपनीज होते हैं, डिफंक्ट राइट, जिनमें कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं होते. ऐसे कंपनीज को आरओसी देखते हैं, अरे इनमें कुछ हो नहीं रहा है तो क्यों खाली इतने कंपनीज ओपन करके भी क्या फायदा है, तो वो क्या करता है, उनको बाउंड अप करता है, उनके नाम से रजिस्टर से हटाता है. देन नंबर, सो पार्टनरशिप में हमें किसी कोर्ट के पास जनरली जाना नहीं पड़ता. यस, डिसोल्यूशन कैन बी थ्रू कोर्ट एज वेल, हम वो सीखेंगे लास्ट चैप्टर में. बट मैं बोलता हूँ कि हमेशा कोर्ट में ही जाके डिसोल्यूशन होगा ऐसे नहीं है, बाउंड अप होगा ऐसे नहीं है, पार्टनर्स भी कर सकते हैं. हाउएवर इन केस ऑफ कंपनीज, members on their own cannot liquidate the company, they have to approach to the like NCLT, National Company Law Tribunal. आगे मतलब मेंबर खुद होके लिक्विडेट नहीं कर सकते, वो लॉ के थ्रू ही होगा, कोर्ट के थ्रू ही होगा, बिकॉज लॉ ओनली गिव्स बर्थ टू द कंपनी, लॉ ओनली विल लिक्विडेट द कंपनी. ठीक है, आगे नंबर ऑफ मेंबर्स. यस, ये भी मैंने समझाया. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन एनी एसोसिएशन शैल नॉट एक्सीड 100. हाउएवर, रूल्स गिवन अंडर कंपनीज रूल्स 2014, द नंबर इज 50. आगे, प्राइवेट कंपनी में हैव एज मेनी एज 200 मेंबर्स. ये भी मैंने समझाया, 200 मेंबर्स से ज्यादा अगर मेंबर्स हो गए तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी फिर, राइट. सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200, पहले 50 होता था, आप 12th में जब हो गए आप 50 लिखते होगे मे बी, एक्चुअली इट इज लिमिट इज 200. ठीक है, बट नॉट लेस देन 2. मैंने क्या बोला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स, और उसको भी एक्सेप्शन है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, जिसमें मिनिमम नंबर कितना रहेगा 1, वही मिनिमम ही मैक्सिमम होगा 1. ठीक है, एंड पब्लिक कंपनी, राइट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना चाहिए वो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट, मे हैव एनी नंबर ऑफ मेंबर्स बट नॉट लेस देन 7. ये प्राइवेट कंपनी कैन also be formed by one person known as OPC. So OPC is a type of private company, private limited company. ठीक है, नाउ सो ये सब था, देखो, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज इसमें 2 एक्ट्स कवर होते हैं आपके, तो ये इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे पूछने के. सो टुडे आई कंप्लीटेड द डिस्टिंक्शन. बाकी डिस्टिंक्शन को मुझे टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं है, वो जल्दी हो जाएंगे, वो कल खत्म हो जाएंगे. ठीक है, बट ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई विल रिवाइज, जस्ट गिव मी लास्ट 2 minutes, आई विल रिवाइज. मैंने क्या क्या बोला, राइट. मैंने बोला कि राइट कंपनीज हैज टू बी रजिस्टर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं,
द कंपनीज विच आर रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट दे आर कंपनीज. कोई कंपनीज कोई स्टैट्यूट के अंडर रजिस्टर हो सकते हैं, उनको हम स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं. कोई कंपनीज लाइक चार्टर के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको हम चार्टर्ड कंपनी बोलते थे. कोई भी कंपनी इंडिया में अनरजिस्टर नहीं हो सकती. सो कंपनीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज रजिस्टर. ठीक है. फिर ऑन द रेस्ट्रिक्शंस, अगर किसी कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रजिस्टर करते टाइम, बराबर, आरओसी के पास जाते तो दो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, एमओए एंड एओए. एंड उस एओए में अगर 3 रिस्ट्रिक्शंस है, कौन कौन से? मैक्सिमम नंबर कैन नॉट एक्सीड 200, राइट. दूसरा, you cannot invite public to subscribe your shares and debentures, that is securities. And तीसरा restrictions था on transfer of shares. अगर ये 3 restrictions है, जब हम रजिस्टर कर रहे कंपनी with these 3 restrictions, उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोला जाएगा. अगर ये 3 restrictions नहीं है एंड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तीनों में से एक भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो वो प्राइवेट लिमिटेड है. तीनों में से एक भी नहीं तो कौन सी कंपनी हो गई? पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई. फिर मैंने बोला प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 मेंबर्स रहेंगे, मैक्सिमम 200 रहेंगे. एक्सेप्शन है ओपीसी, जिसमें 1 मेंबर के साथ कंपनी फॉर्म होती है. प्राइवेट लिमिटेड का एक और टाइप है स्मॉल कंपनी, विच यू लर्न इन डिटेल इन द कंपनी लॉ. उसमें क्या होता है, पेड अप कैपिटल शुड, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है उनको हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे, या उन जिनका टर्नओवर 5 CR से कम है उनको हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे. दिस इज और, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों में से एक है, राइट. तो हम उसको क्या बोलेंगे, राइट, स्मॉल कंपनी बोलेंगे. अदरवाइज हम उनको क्या बोलेंगे, राइट, कौन सी कंपनी बोलेंगे? अदर्स के कैटेगरी में जाएगा वो. ठीक है. देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में मैंने क्या बोला, राइट, उनमें वो 3 रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते, राइट. उनमें मिनिमम मेंबर्स 7 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं. और ये भूल जाओ कि देयर इज अ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, आज नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं. ठीक है. 1 लाख 5 लाख जो हमने 11-12 में सीखा वो रॉन्ग सीखा, वो ओल्ड कंपनीज एक्ट के हिसाब से जब मैं स्टूडेंट था तब होते, आज नहीं. देन जनरली कंपनीज कैन बी आल्सो डिवाइडेड whether their shares are listed or unlisted. Private limited companies are always unlisted. Public limited companies are listed or unlisted. ठीक है. On the basis of who is the real owner, हम कंपनीज को पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड करते हैं. ऑल सच कंपनी जिनमें 51% से ज्यादा कैपिटल, 51% से ज्यादा कैपिटल ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट में कौन कौन आता है? स्टेट गवर्नमेंट, इंडिविजुअली स्टेट गवर्नमेंट, इंडिविजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट, और कलेक्टिवली बोथ 51% से ज्यादा ओनर है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी. एंड अगर रियल ओनर इज अ प्राइवेट, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनी. ठीक है. लायबिलिटी के हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. लिमिटेड लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी और बोथ. समझ में आ रहा है? अनलिमिटेड के केस में लायबिलिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अनलिमिटेड. फिर मैंने बोला पब्लिक सेक्टर कंपनी कैन बी, पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर नॉट सेम, राइट. सेम प्राइवेट सेक्टर कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट सेम, बहुत डिफरेंस है. इसलिए मैंने चार्ट निकाला. पब्लिक सेक्टर कंपनीज, राइट, कैन बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी और कैन बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. On similar basis, private sector company can be public limited company और private limited company. जब मैं सेक्टर की बात करता हूं तो मैं कौन ओनर है ये देखता हूं, एंड जब मैं लिमिटेड की बात करता हूं तब मैं बोलता हूं वो रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं है. तो उसमें भी मैंने बोला कि एग्जांपल ONGC इज अ लिस्टेड कंपनी बिकॉज इट्स शेयर्स आर लिस्टेड. दूसरा, राइट, दैट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिकॉज इट्स आर्टिकल डज नॉट रिस्ट्रिक्ट, राइट, उसके 3 रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते. And it is a public sector company because real owner is government. वही अगर पुणे एयरपोर्ट लेते हो, right, it is a private limited company. However, it is a public sector company because real owner government है. But इस, right, उसके आर्टिकल्स के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस है, वो शेयर्स किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकते. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, राइट, जो आपको पता चलेगा हमेशा याद रहेगा वो. फिर प्राइवेट सेक्टर में मैंने बोला कि, राइट, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ प्राइवेट सेक्टर पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड उसमें वो लिस्टेड आ गई. समझ में आ रहा है? एंड फ्लिपकार्ट का मैंने एग्जांपल दिया आपको. फ्लिपकार्ट इज, राइट, यूर प्राइवेट सेक्टर कंपनी बिकॉज उसमें रियल ओनर गवर्नमेंट नहीं है,
वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बिकॉज इट्स आर्टिकल गिव्स दोस 3 रिस्ट्रिक्शंस. सो राइट, एंड ऑब्वियसली कंपनीज के स्टेटस चेंज होते जाते हैं कभी कभी, राइट. कंपनीज लिस्ट होती है वगैरह, तो हमें वो हमेशा देखना पड़ेगा. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट. सो फिर कंपनी जो शेयर्स पे डिविडेंड देती है, डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है. ठीक है, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो देना ही पड़ता है, फिर आप पीछे नहीं आ सकते. सो देने के पहले ही सोचो, डू यू हैव प्रॉफिट और नॉट. इफ यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट देन ओनली गिव डिविडेंड, अदरवाइज नो. समझ में आ रहा है. एंड फर्म्स के केस में आरओएफ के पास रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनीज के केस में आरओसी के पास होता है. आरओसी के पास आपको 2 डॉक्यूमेंट देने होते हैं, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. उसमें क्या होता है क्या नहीं वो आपके कंपनी लॉ में आप सीखोगे. ROC gives you 2 certificate, certificate of incorporation and certificate of commencement of business. ठीक है, so ये सब था. And then we studied the difference between the partnership and company, and this is very very important differentiation.